Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। RBI keeps key rates unchanged, says it will continue with the accommodative stance to revive growth and mitigate the impact of COVID-19. Domestic stocks gain around 1%. Sensex reclaims 38,000 level. Nifty regains 11,200 mark. And gold rises to 56,590 rupees per 10 grams in the national capital. भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति में उदार रुख बनाए रखेगा। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक लगभग 1% बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स फिर से 38,000 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी 11,200 दर्ज हुआ और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य बढ़कर 56,590 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा। In our top story, RBI Governor Dr. Shaktikanta Das today said that the APEC Bank's Monetary Policy Committee MPC has decided to unanimously leave the policy repo rate unchanged at 4%. He added that RBI will continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19, while ensuring that inflation remains within the target going forward. In an address after the conclusion of the three-day MPC meeting today via video conferencing, Dr. Das said the marginal standing facility MCF rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. He said the reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. He said the MPC's assessment is that the global economic activity has remained fragile and in retrenchment in the first half of 2020. The MPC also observed that a renewed surge in COVID-19 infections in major economies in July has subdued some early signs of revival that had appeared in May and June. The MPC is also of the view that the global financial markets, however, have been buoyant, with the return of risk-off sentiment inserting a disconnect from the underlying state of the real economy. The RBI governor said the headline CPI inflation, which was at 5.8% in March 2020, was placed at 6.1% in the provisional estimates for June 2020. He said, given the uncertainty surrounding the inflation outlook and extremely weak state of the economy in the midst of an unprecedented shock from the ongoing pandemic, the MPC decided to keep the policy rate on hold while remaining watchful for a durable reduction in inflation to use available space to support the revival of the economy. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। आज मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% पर बनी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रिवर्स रिपो दर भी 3.35% पर स्थिर रहेगी। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक समिति का आकलन है कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि नाजुक बनी हुई है। समिति का यह भी मानना है कि इस वर्ष जुलाई में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमणों में नए सिरे से वृद्धि ने अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के उन शुरुआती संकेतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो मई और जून में दिखाई दिए थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर
जो मार्च 2020 में 5.8% थी, वह जून में अंतरिम अनुमानों के अनुसार 6.1% हो गई। अर्जुन, यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर किन कारणों से केंद्रीय बैंक ने रेपो दर सहित सभी जो प्रमुख ब्याज दर हैं उनको स्थिर बनाए रखना उचित समझा है। वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें इसे समुचित कदम हम समझते हैं कि माना जाएगा। Well, the objective is to maintain liquidity in the market by keeping key rates unchanged. We're talking about the repo rate, the rate at which the central bank lends money to the commercial banks at 4%. That's remained unchanged. And then you have the reverse repo rate, where the commercial banks lend in turn to the central bank at 3.35%. Even the marginal standing facility rate and the bank rate remains unchanged at 4.25%. What we're seeing right now is that a line of credit has been extended to MSMEs to ensure that they are in a working position. They can meet their day-to-day expenses, primarily working capital, so that they don't have to become insolvent and go to the insolvency and bankruptcy board to be declared bankrupt, and that would be a condition that the government wants to avoid. So the objective right now is to revive growth in the economy, to ensure that there's a continuity of business operations as far as MSMEs are concerned. But as far as the money supply in the market is concerned, I think there is an issue with transmission rate, the rate at which commercial banks lend in turn to the individual or the retail investor. But slowly we are seeing that there is the consumption story is unfolding. If you look at even the stock market right now, you will find that there is the more buying interest in consumer durables. For instance, FMCG has been going up. So there is an expectation right now that the consumption story will return. Bajaj Finance, for instance, is a top financial services provider for consumer durables, and their stock prices have been going up. So there is right now a feeling in the investment community that revival is going to take place, but it will take place in staggered and incremental growth patterns. हाँ, उसके अलावा यह भी अनुमान किया जा रहा है कि वर्ष की जो दूसरी छमाही रहेगी, यानी पहली छमाही तो निकल गई, लेकिन दूसरी छमाही रहेगी, उसमें जो आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं हैं वो अपेक्षाकृत अधिक निखर कर सामने आएंगी। फिलहाल केंद्रीय बैंक ने यह चिंता जताई है कि जो ताजा कोविड के आंकड़े मिले हैं विश्व अर्थव्यवस्थाओं में, उससे जो शुरुआती संकेत दिखे थे अर्थव्यवस्था के फिर से तेज गति पकड़ने के, उस पर थोड़ी सी आंच आई है। मई और जून में खासतौर से कई क्षेत्रों में हमने बढ़त देखी थी, खासतौर से भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो खपत के आंकड़े आए थे वो अच्छे आंकड़े आए थे। आने वाले दिनों में वह कैसे आएंगे उस पर थोड़े से संदेह के बादल दिख रहे हैं। इसके अलावा शक्तिकांत दास जी ने यह भी कहा है कि मुद्रास्फीति की दर जो मार्च 2020 में उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित 5.8% थी, वह जून में अंतरिम अनुमान के अनुसार 6.12% हो गई थी। यानी कुल मिलाकर यह अंदाज किया जा रहा है कि मुद्रास्फीति थोड़ी सी बढ़ी है। इसे हम किन अर्थों में लें? मुद्रास्फीति का थोड़ा सा बढ़ना क्या दर्शाएगा, क्या आकलन करेंगे हम उस पर? Well, the situation cannot go from bad to worse, and for that reason, there has to be a continuity of the enterprise, ensuring that employment is still secure, even if wages have been cut in some cases. But as far as the banking community is concerned, commercial banking is concerned, the first step before COVID-19 was to ensure that the solvency of public sector banks, recapitalization of these banks by the issue of bonds, and the central bank had taken measures to ensure that the cash reserve ratio was reduced. It had taken steps to ensure that the statutory liquidity ratio, the SLR requirements, were also reduced, whereby banks have to buy government securities, GSECs, they can be money market instruments or medium to long-term debt by which they pledge and they borrow from the central bank as well. So these steps have already been taken. We are seeing a revival in the public sector banks. If you look at their corporate results, their profitability has gone up. Their NPAs have come down. So these stabilization measures have already been taken place at a structural level by the central bank earlier.
and right now it is to transmit the benefit of a lower rate of interest to the consumer, and the consumer story is slowly unfolding, and there are investors in the market. If you look at the movement in the stock market and FMCG, consumer durables, and even NBFC stocks, they are slowly picking up. So there is a sentiment right now that there would be an improvement as far as the consumption is concerned. Once employment and income levels pick up, then clearly the economy will revive, but there is going to be a period in between where there will be some difficulty, but this is the phase in which the central bank has to take key decisions. बिल्कुल, जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों से, उनसे यह साफ साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन खासतौर से एफएमसीजी क्षेत्र में लोगों की खपत बढ़ने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की खरीदारी बढ़ी है। उसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी जो कल कारखाने थे जिस तरह से बंद थे, उनमें मजदूरों का वापस लौटना शुरू हो चुका है। प्रवासी मजदूर जिनको लेकर यह था कि वह कब तक आएंगे और नहीं आएंगे तो कारखाने चल नहीं सकेंगे, उनके वापस लौटने की दर बढ़ी है। और उसके अलावा जो छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उन्होंने जो ताजा ऋण लिए हैं सरकार की ओर से, जो गारंटीड ऋण उपलब्ध कराया गया है, उसका लाभ हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। यानी कुल मिलाकर स्थितियां जो अभी जितनी प्रतिकूल दिख रही हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने एकोमोडेटिव स्टांस, यानी कि जैसा भी उचित होगा उसे ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाएंगे, उस पर अपना रुख बनाए रखा है। यानी लचीला रुख बना हुआ है कि जैसी जरूरत होगी बाजार में, आपने अर्जुन बिल्कुल ठीक कहा कि लिक्विडिटी यानी तरलता बनाए रखने के लिए, ताकि लोग धन का लेन देन कर सकें, आसान शर्तों पर उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक आगे चल रहा है। There is also an estimate by a group of experts that by March 2021, which is next year, about 6 to 7 months away, that the central bank has room to reduce the repo rate by another 25 to 50 basis points. So there is room to cut the rate, but right now the issue is the transmission of that rate by the commercial banks at the retail level. So when will that take place, especially with 75% of banking in the hands of public sector banks, the remaining 25% with private sector banks, which are right now have become affected by the COVID-19 crisis, in some cases have downsized marginally. So there are issues right now in terms of extending the line of credit, but the credit is available with the banks. हाँ बिल्कुल, यानी यहाँ पर बैंक को भी ध्यान रखना होगा कि जो आम लोगों की आवश्यकताएं हैं, जो लघु उद्यमी हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए पहले के जो केंद्रीय बैंक का नजरिया होता था, ब्याज दर में कमी की जाती थी, लेकिन उसका लाभ आम उपभोक्ताओं तक नहीं मिलता था। बैंक अपने लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए जिस रूप में वो बीच में ही होल्ड कर लिया करते थे, अपनी मजबूरियों को दिखाते हुए, उसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में व्यावसायिक बैंक हैं उस पर ध्यान रखेंगे और आसानी से यदि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में आने वाले दिनों में कमी करता है तो उसका लाभ पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे। यदि ऐसा हो सका तो और तेज गति से ऋण का प्रवाह उठेगा, और ऋण का प्रवाह एक बार उठता है तो फिर बाजार में धन का लेन देन जैसे ही बढ़ता है वैसे ही आर्थिक चक्का चल पड़ता है और इसका लाभ समग्र क्षेत्र को मिलता है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर लिवाली तेज रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 362 अंक यानी 0.96% की बढ़त लेकर 38,025 पर बंद हुआ। यानी एक बार फिर से सेंसेक्स 38,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया है। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 99 अंक यानी 0.89% की बढ़त के साथ 11,200 पर बंद हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी आज तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.77% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.99% की वृद्धि देखने को मिली। Domestic equity benchmark Sensex today surged 362 points after the RBI left interest rates unchanged but maintained an accommodative stance to boost growth. After rallying 558 points during the day, the BSE Sensex ended 362 points, 0.96% higher at 38,025.
The broader NSE Nifty jumped 99 points, 0.89% to 11,200. In the broader market at the BSE, the mid-cap closed 0.77% up and the small-cap gained 0.99%. Tata Steel was the top gainer in the Sensex pack, rising around 4%, followed by Infosys, Bajaj Finance, TCS, HCL Tech, ICICI Bank and Tech Mahindra. On the other hand, Bharti Airtel, Mahindra & Mahindra, Larsen & Toubro and Axis Bank were among the laggards. According to experts, market participants cheered the RBI's balanced approach, which is seen in line with expectations that the central bank will be looking at alternate measures such as forward guidance and maintain sufficient liquidity. श्रोताओं को हम जानकारी देना चाहेंगे आज के बाजार की गतिविधि के बारे में। सबसे पहले हम ध्यान दें कि किन किन कंपनियों को आज अच्छा खासा लाभ हुआ है। आज सबसे अधिक ऊपर जो लाभ कमाने वालों में सबसे ऊपर सेंसेक्स पैक में रही है कंपनी, वह है टाटा स्टील, जिसके शेयरों में आज 4% की वृद्धि हुई है। बढ़त कमाने वाली जो प्रमुख कंपनियां हैं उनमें शामिल है इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा। दूसरी ओर भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक ऐसे थे जिन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। कारोबारियों का कहना है कि जो आरबीआई का फैसला आया है उससे बाजार भागीदारों को उत्साह मिला है और वो ये मान के चल रहे हैं कि केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में उनके लिए और अनुकूल स्थिति यानी उपलब्ध कराएगा। अर्जुन, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि बाजार किस दिशा में निकलता हुआ अब दिख रहा है। Well, Manoj, if you look at the trading pattern today, it was in the last hour of trade that the buying interest really picked up, which is why the Sensex went up by 362 points today and crossing that 38,000 mark, along with the Nifty 50, which rose by 98 points to close at 11,200. So these are crucial resistance levels that they have crossed. And when you mentioned about specific stock action, barring metals, but if you look at IT stocks, they rose by 2.2%. It was a top performer in the Sensex pack today. And followed by that, we had FMCG index, which went up by 1.3%. And then you had consumer durables going up by 1.2%. And I think that was the reason why, because RBI had kept the policy, the key rates, repo rate unchanged, the reverse repo rate unchanged, the MCF unchanged. So as a result of that, there is now more optimism that lending rates will remain stable and the consumption story can once again revive as far as the individual is concerned at the retail level. So I think that has been the impact as far as the RBI announcement today by the MPC on the market. अर्जुन, यहाँ पर हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां समझी जा रही थी बाजार के लिए, उतनी प्रतिकूल परिस्थितियां वैश्विक बाजारों में भी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, आशंकाएं हैं, समस्याएं हैं और बाजार कब तक पूरी तरह अर्थव्यवस्था का चक्का तेज गति से चलेगा यह कहना कठिन है। लेकिन यदि हम दुनिया भर के शेयर बाजारों को देखें तो वहां बढ़त का सिलसिला बना हुआ है। खासतौर से अपने यहाँ भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम वृद्धि देखने को मिल रहे हैं और कुछ कंपनियां, सेंसेक्स पैक की कुछ कंपनियां हैं जिनका प्रदर्शन इस दौरान बेहतर रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका ओवरऑल प्रदर्शन खास तौर से बेहतर देखने को मिला है। जो आशंकाएं पहले देखी जा रही थी कि कहीं उनकी लाभप्रदता, उनका कारोबार ना प्रभावित हो, वह देखने को नहीं मिला है। यहां पर अर्जुन, क्या पूरी दुनिया जो दूर संचार का क्षेत्र है या जो कह लीजिए डेटा का क्षेत्र है और जो आईटी का क्षेत्र है, वह क्या बढ़त की ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा? जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें एक ओर यानी टेलीकम्युनिकेशन और दूसरी ओर आईटी सेक्टर, ये दोनों क्षेत्र क्या एक प्रमुख क्षेत्र बनकर नहीं उभरे हैं वर्तमान व्यवस्था में? Well, Manoj, you know that the experts before have also said that telecom has been the biggest beneficiary of the COVID-19 pandemic crisis, where people under lockdown have used bandwidth services far more as compared to when we were free of this kind of disease pandemic in society. So telecom today witnessed some profit bookings, was down by 0.3%. But when you talk about IT index, which was the top performer today by 2.2%, you had Infosys, the top gainer, you had HCL Technologies, the top gainer, and the offshore outsourcing business has always been profitable at the macroeconomic level for
companies in India, and they depend a great deal upon how the Western economies are doing, because they are the ones who are offshore outsourcing to countries like India, the BPO services. But there are questions being raised about the US economy right now, and with the presidential election in the month of November, and that is as per their constitutional requirements. So the elections will take place one way or the other, and there are concerns about how they're looking at offshore outsourcing. But despite these political feedback as far as the US economy is concerned and the rhetoric there, it seems that the IT index has not been affected. The investor sentiment is quite strong. As far as their revenue guidance is concerned, that is also relatively good. It is not exceptional, but in the present times, the IT index has been a very good performer. यहाँ पर ऑटो सेक्टर भी ऐसा दिख रहा है कि, और खासतौर से भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय लोगों की मनः स्थितियों को देखते हुए और भारतीय जो खरीदार होते हैं उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कि ऑटो सेक्टर में भी जैसी कि पहले आशंकाएं थी, उनकी तुलना में जो विभिन्न कंपनियों के आंकड़े आए, खासतौर से मारुति के आंकड़े आए, उसने यह दिखाया कि उतनी बुरी स्थिति नहीं है जैसे कि पहले आशंका व्यक्त की जा रही थी। आने वाले दिनों में जब कह लें कि त्योहारों का सीजन शुरू होगा, एक बार जब ये बारिश का महीना खत्म होता है, आश्विन का महीना श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद लगातार जो बाजार की खरीदारी बढ़ेगी, तो उसमें ऑटो सेक्टर मुझे लग रहा है कि वहां भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं वर्तमान जो भी स्थिति है उसकी तुलना में। आपको कैसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर फिर से पिकअप करेगा? Well, we have seen in the trading earlier that in the cash market they have in fact witnessed capital gain. Even in the futures market there's a long build-up on auto stocks and auto ancillary stocks, but then the expectation is that auto sales will revive and once again their revenues will go up. But when you compare the product like auto to consumer durables in this market right now, the consumer is more comfortable purchasing white goods as compared to buying the auto, because that is linked to their employment situation, if it's long term or not, and the revival of NBFCs as well, the non-banking financial companies, which are the ones who provide loans to buy auto products. श्रोताओं, हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा को फोन लाइन पर। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो हम आज की जो अहम खबर है उस पर समझना चाहेंगे, लेना चाहेंगे आपकी टिप्पणी। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया और एकोमोडेटिव स्टांस यानी कह लें सहयोगात्मक रुख बनाए रखने का ऐलान किया है। क्या रही आज की मौद्रिक नीति की मुख्य बातें और जो कदम उठाए गए हैं वह किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई रेपो रेट में फेरबदल नहीं किया है। जो रेपो रेट की दर है वो 4% के ऊपर ही बरकरार है। वो चिंताओं को देखते हुए, जैसे कि पहले सप्लाई साइड में कुछ डिसरप्शंस रही हैं जब लॉकडाउन पीरियड रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले टाइम में शायद इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई हुए, जो कि प्राइस प्रेशर्स हैं कुछ बन सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है कि जो दर है, जो रेपो रेट की दर है, वो 4% तक ही रखी जाए। इसके अलावा जो ग्लोबल रिकवरी है उसमें भी काफी स्लो डाउन है, काफी हेजिटेंट रिकवरी है। रिकवरी डिसाइसिव नहीं हो रही है क्योंकि कोविड केसेस में काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कई बार पहले तो थोड़ा सा एड्रेस किया गया था कि कोविड का जो सिचुएशन है वो डिसलिरेटिंग ट्रैजेक्टरी में है, लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसे केसेस, जो फ्रेश केसेस हैं वो बहुत बड़े हैं। खासकर इंडिया में भी फ्रेश केसेस बहुत बड़े हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी है उसके भी बहुत सारी चिंताएं हैं कि आने वाले टाइम में जो मार्केट्स में अभी जो अपसाइड दिखा गया है, जो रिकवरी देखी गई है लो से, तो वो कितना बरकरार रह पाएगी। और इसके अलावा जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि इंडिया में एक रिकवरी हमें दिखी थी जून के महीने में, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे केसेस बढ़ने शुरू हुए तो जो लॉकडाउन की सिचुएशन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में देखी गई है, तो उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि सप्लाई डिसरप्शन आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन के लिए
खराब हो सकती हैं और जो रेपो रेट की दर है वो 4% तक इस टाइम पे होनी चाहिए। तो रिजर्व बैंक का ये डिसीजन काफी अच्छा है क्योंकि बहुत ही कैलिब्रेटेड स्टांस है और अकोमोडेटिव स्टांस है। तो इस टाइम पे जो आरबीआई गवर्नर साहब का जो एक मैसेज है कि हमें किस तरीके से कंटेन करना है कोविड को, कि एक कन्विक्शन के साथ हम कोविड को कॉम्बैट कर सकते हैं, एक बहुत ही सही कदम ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो दिखाता है कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो जैसे ही कोविड को हम कंटेन कर पाएंगे तो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वापस अपनी पटरी पे आएगी और हम एक अच्छा कंफर्टेबल जो ट्रैजेक्टरी आने वाले टाइम में देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो ये वाला जो सेकंड क्वार्टर है इसमें स्लो डाउन बरकरार रहेगी क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से ऐसे इंडिकेशंस है कि जो रिकवरी प्रोसेस है वो काफी इम्पैक्ट हुई है। डॉक्टर शर्मा हाँ, यानी घरेलू शेयर बाजार में आज कह लें आज की जो प्रगति रही है 362 अंक उछला है, 11 यानी कह लें कि निफ्टी फिर से 11,200 पहुंच गया और 38,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। उसे किन अर्थों में ले रहे हैं? बहुत संक्षेप में जी, उसका मेजरली जो लिक्विडिटी है वो उसके चलते हुआ है मेजर ड्राइवर जी। लिक्विडिटी की वजह से मार्केट्स में काफी उछाल है। जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी बताती है कि हमारा जो इस टाइम पे लिक्विडिटी है वो लगभग कोई 4.7% है जीडीपी का देखा जाए तो। जो भी सरकार ने पीछे मैयर्स लिए हैं, जो उसके चलते ये उछाल मैयर्स लिए हैं, उनकी वजह से लिक्विडिटी सिचुएशन काफी इंटैक्ट है जी। आइए, और दूसरा कारण है कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं उनके आने वाले टाइम में अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। बस सिचुएशन ये है कि कोविड किसी तरीके से कंटेन हो जाए जी। आइए, तो ग्रोथ जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो उस वजह से मार्केट्स में जो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है वो आने वाले दिनों को देखते हुए आइए अब चलते हैं श्रोताओं को वैश्विक बाजारों की झलक देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां मिला जुला रुख देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.3% बढ़त में रहा। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% ऊपर आकर बंद हुए। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हिंग सिंह 0.7% नुकसान में रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक नरमी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.9% नीचे था। फ्रांस का कैक 40 1.3% नीचे और जर्मनी का डैक्स भी 0.9% घाटे में चल रहा था। Moving on to the US market, Wall Street's main indices rose yesterday after Disney delivered a surprise quarterly profit, with sentiment aided by signs that a coronavirus fiscal relief package was imminent. The Dow Jones Industrial Average gained 1.4%, S&P 500 rose 1.6%, and the Nasdaq Composite Index added 0.5%. हम नजर डाल दें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज बिना किसी उतार चढ़ाव के 74 रुपए 94 पैसे के स्तर पर बना रहा। Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today slipped but remain below 5-month highs with support from a weak dollar and falling U.S. crude inventories undermined by bearish sentiment about fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $45.10 per barrel, while WTI crude prices were around $41.90 per barrel. नजर डालें सोने की स्थिति पर। चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। सोने का मूल्य 225 रुपए बढ़ा, 56,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 1,932 रुपए उछली, 75,755 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य $2,045.70 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। चांदी $27.57 प्रति आउंस हो गई। डॉक्टर शर्मा, आप लगातार सोने के मूल्यों में चमक की बात कहते रहे हैं। सोना अब और कितना बढ़ रहा आपके आकलन के अनुसार? Sir, we have 30 seconds. जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ग्लोबल लिक्विडिटी काफी इंटैक्ट है, तो जिस तरीके की स्थिति है कि इकोनॉमीज रिकवर नहीं कर पा रही हैं, कोविड का इम्पैक्ट काफी सीवियर है, तो सोने में उछाल बना रहेगा, सोने की चमक जो है बरकरार रहेगी। और आने वाले टाइम में प्राइसेस में ये जरूर है कि वॉलेटिलिटी रह सकती है, प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन जो ओवरऑल जो प्राइसेस है, जो ट्रैजेक्टरी है, वो इंटैक्ट रहेगी। बस यहीं पर बरकरार रहेगी। जी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, शुक्रिया, थैंक यू।
And before we close, a reminder of the headlines. RBI keeps key rates unchanged, says it will continue with the accommodative stance to revive growth and mitigate the impact of COVID-19. Domestic stocks gain around 1%. Sensex reclaims 38,000 level. Nifty regains 11,200 mark. And gold rises to 56,590 rupees per 10 grams in the national capital. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.